شہریوں کو سرد موسم میں بھی ریلیف نہیں مل سکا۔ بجلی کے کم استعمال کے باوجود بھی بل اضافی آ چکے ہیں۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ہزاروں روپے کے اضافی بل بھیج دیے گئے ہیں۔ سرد موسم میں کراچی والوں کے پسینے نکل گئے۔ دسمبر کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نے شہریوں کو ہائی وولٹ کا جھٹکا دے دیا۔ مہنگائی سے بے حال شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی میں پنکھے بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں آپشن اور لوٹ رہے ہیں عوام کو، بالکل کھلا لوٹ رہے ہیں، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ الیکٹریکل نے ٹیکس اتنے ڈالے ہوئے، اتنی مہنگی بجلی کی ہوئی ہے، مگر ہم لوگ کہاں سے بل بھریں؟ اب اتنی تنخواہیں نہیں ہیں جتنے بل ہیں ان کے۔ نیپرا کی منظوری کے بعد شہریوں کے لیے دسمبر کے بلوں میں ستمبر میں استعمال ہونے والے فی یونٹ کے حساب سے 3 روپے 76 پیسے لگا کر بھیج دیے گئے، جس پر شہری برہم ہیں۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ شنگھائی الیکٹرک نے کے الیکٹرک کے شیئرز کی خریداری کے لیے ایک بار پھر درخواست دیتی ہے۔ شنگھائی الیکٹرک پاور کمپنی نے کے الیکٹرک کے 66.4% شیئرز کی خریداری کی پیشکش کر دی ہے۔ شنگھائی الیکٹرک نے ریگولیٹری اتھارٹی کی منظوری کے لیے 10ویں بار درخواست دے دی۔ درخواست ایک اسٹاک ایکسچینج کو بھی بھیج دی گئی ہے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں گیس نایاب ہو چکی ہے۔ متعدد علاقوں میں گیس کی فراہمی تعطل کا شکار ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے باسی تھر جیسی زندگی گزارنے پر مجبور، سردی آتے ہی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی فراہمی التوا کا شکار ہو گئی۔ کئی علاقوں میں دن بھر چولہے ٹھنڈے رہنے لگے۔ ناظم آباد، محمود آباد، گلشن اقبال، کورنگی سمیت متعدد علاقوں میں گیس غائب ہے۔ پاکستان چوک پر واقع حقانی محلے کے مکین بھی 1.5 ماہ سے گیس کی فراہمی سے محروم ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہر 4 دن بعد 600 روپے کا گیس سلنڈر بھروانا پڑتا ہے۔ گیس کے بل الگ اور سلنڈر کے پیسے الگ ادا کرتے ہیں۔ رات میں 2 گھنٹے کے لیے گیس دی جاتی ہے، جس سے کچھ نہیں پک سکتا۔ بالکل 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور گیس بالکل نہیں ہے۔ اتوار کا دن پہلے آ جایا کرتی، چلو چھٹی کا دن ہوتا تھا، اب تو بالکل بھی نہیں آتی، ایک قطرہ گیس نہیں آتی۔ اس وقت بھی آپ ہمارا چولہا جلا کے دیکھ سکتے ہیں، گیس نہیں ہے۔ رات کو کبھی کبھی 2 گھنٹے آ جاتی ہے گیس، تو 2 گھنٹے بھی کبھی کبھی تو آتی ہی نہیں ہے، بالکل چولہے بند ہوتے۔ ہم لوگ نا اوپر کا فلور ہے تو ہم وہاں لکڑیاں یوز کریں، لکڑیوں کو ڈھونڈ کے لانا، گاؤں تو ہے نہیں آسانی سے لکڑیاں مل جائیں یا کر جائیں، ڈھونڈنا لانا، آدمی جاب پہ جائے گا یا لکڑیاں لائے گا یا سلنڈر بھروائے یا کھانے بنائے۔ حقانی محلے کے مکین لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، کراچی میں نہیں۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ ہادیہ ناز، سٹی 21۔ مسائل سے دوچار یوسف گھوٹ سرجوانی ٹاؤن کے مکینوں کا احتجاج رنگ لے آیا۔ سوئی گیس کمپنی کی ٹیم گیس کنیکشنز کے مسائل حل کرنے کے لیے یوسف گھوٹ پہنچ گئی۔ یوسف گھوٹ کے مکینوں کی سن لی گئی۔ گیس کے مسائل پہ انسان دوست فورم کے ساتھ SSGC کے آفس کے باہر مکینوں کے احتجاج پر سوئی سردن جاگ گئی۔ گیس کنیکشنز میں لیکیج، لوڈ شیڈنگ اور نئے کنیکشن لگانے کے لیے گیس کمپنی کی ٹیم یوسف گھوٹ پہنچ گئی۔ کنیکشنز کی بحالی کا کام شروع کر دیا۔ گیس ٹیم کی آمد پر انسان دوست فورم کے چیئرمین کیس منصور شیخ کا کہنا ہے کہ یوسف گھوٹ کے مکین گیس کی عدم دستیابی پر سراپا احتجاج تھے۔ امید ہے کہ لوگوں کے مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ 10 سال سے لیکیجز کا کوئی کام نہیں ہو رہا، آج 10 سال کے بعد کوئی سوئی گیس کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ MD سوئی گیس نے ہم سے وعدہ کیا اور آپ کے سامنے وعدہ کیا اور آپ کے پاس ریکارڈ میں ہے وہ کہ یہ نئے کنیکشنز بھی دیں گے۔ یوسف گھوٹ کے مکینوں نے شکوہ کیا کہ گوٹوں میں گیس کے مسائل نے لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے کہ ہمارا فیز 2 کے اندر گیس نہیں ہے، ہک گیس ہم نے منظور کرایا تھا، لیکن وہ ہمارا وہ ہک گیس جو ہے وہ کٹ گیا۔ تو ہم اپیل کریں گے گیس کمپنی کو کہ مہربانی کر کے ہمارے فیز 2 کے اندر گیس کی لائنیں ڈالی جائیں۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے گیس تھی ہی نہیں، اگر تھی بھی تو باہر سے لیکیج ہوتی تھی، تو ہم نے 17 دسمبر کو دھرنا دیا تھا، انسان دوست کی پوری ٹیم نے، ہمارے چیئرمین کیس منصور نے، تو اس کی بہاف پہ جو یہ ہماری کامیابی ہوئی تو یہ سوئی سدرن گیس والے آئے ہیں اور ہمارے نئے کنیکشن دینے کے لیے آئے ہیں۔ انسان دوست فورم نے گیس مسائل کے حوالے سے یوسف گھوٹ کے مکینوں کی آواز بلند کی، مگر علاقے میں گٹر ابل رہے ہیں، سڑکوں کی صورتحال بھی خراب ہے۔ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے یہ مسائل بھی حل کیے جائیں۔ کیمرامین حمزہ راجپوت کے ہمراہ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ گیس بحران نے لکڑی کی ٹال والوں کی چاندی کر دی ہے۔ گھروں میں گیس کی کمی نے لکڑی بیچنے والوں کے کاروبار کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ شہر میں گیس بحران سے ہر کوئی پریشان، لیکن لکڑی کے کاروبار میں آ گئی جان۔ شہر کے ہر علاقے کے مکین گیس کی عدم دستیابی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ بحران نے جہاں لوگوں کا کاروبار متاثر کیا، وہیں لکڑی کی ٹال والوں کی چاندی بھی کر دی۔ جلانے والی لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس وقت من چل رہی ہے 1200 روپے من، اور کلو چل رہی ہے 30 روپے kg، اور
और पहले जो था ये 1200 अपना 600 रुपये मन था पहले। नसीर खान का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लकड़ी महंगी हुई। जब से ये डीजल का और पेट्रोल का रेट बढ़ा है, इससे ही लकड़ियों की मांग अपना वो रेट ज़्यादा हो गया है। और दूसरा ये कि लकड़ियों की मांग भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि गैस शॉर्ट हो रहा है, गैस आ नहीं रहा है बिल्कुल। लोगों का एक हुजूम आ जाता है जिनको कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर हो जाता है, इतना लोग आ जाते हैं। जबकि टाल पर आए शहरियों ने शिकवा किया कि 2 माह से गैस नहीं मिल रही, महंगी लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। 2-2.5 महीने से गैस बहुत ज़्यादा कम है, परेशानी भी है और ऐसे चलने के घर में खाने पकाने के मसले हैं। अभी लकड़ी आए तो लकड़ी भी महंगी हो गई है, तो हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। गैस आता नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है, हम तो बस मर गए बस। गैस तो है ही नहीं लियारी में, मोमबत्ती अच्छे, गैस तो बिल्कुल ही नहीं है। मुनाफाखोरों ने गैस बहरान को भी फायदे का जरिया बना लिया। 600 रुपए में फरोख्त होने वाली लकड़ी 1200 रुपए मन तक जा पहुंची। कैमरामैन शेर फराज के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जिला कुरंगी में 2 रोज़ के दौरान 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खिलाड़ी भी मुर्तज़ा वहाब की इस कारकर्दगी की तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। मुर्तज़ा वहाब शहर को हरा भरा करने के लिए मुतहर्रिक। 2 रोज के दौरान रोशनियों के शहर में 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने शाह फैसल कॉलोनी रेता प्लाट 1 नंबर पर मिसाली पार्क का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये वो इलाका है जहां से पीपल्स पार्टी कभी कामयाब नहीं हुई। KMC और DMCs जल्द आवाम को फूलों की नुमाइश का तोहफा भी देंगी। मुझे आज खुशी होती है कि आज उसी KMC ने उस बाग को, उस पार्क को रिहैबिलिटेट करके, उसको ठीक करके शहरियों के लिए एक बार फिर खोल दिया है। पार्क आवाम के लिए खोले जाने के बाद सैर व तफरी के लिए शहरियों की आमद शुरू हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन का कहना था कि पार्क की तामीर दुरुस्त इक़दाम है। ये बहुत अच्छी काविश है एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब की, अभी कुछ देर पहले तशरीफ़ लाए थे और इलाके के अवाम के लिए बहुत अच्छी सहूलत है। अवाम टेंशन में होती है, घरों में रहती है, तो आकर पार्क में वो अच्छा फील करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि दीगर मामलात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मलीर काला बोर्ड की सड़क की तामीर का इंदिया भी दिया। मैं आज आप लोगों को अच्छी खबर ये सुनाना चाहूँगा कि उसका टेंडर का प्रोसेस फ्लोट हो चुका है और 6 जनवरी को इंशाल्लाह उसकी बिड खुलेगी और बिड खुलने के बाद जो कानूनी तरीक़ेकार है उसके तहत वहाँ का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। मिसाली पार्क इस वजह से भी मिसाली बन गया है कि इसकी तामीर मुर्तज़ा वहाब की वालिदा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मरहुमा फौजिया वहाब की ख्वाहिश थी, जिसका इजहार उन्होंने 2003 में मरहूम साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान से किया था। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तलहा सलीम ने ज़िला बस्ती को तजावुज़ात से पाक करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया KMC और बल्दिया बस्ती के अफसरान का मुश्तरका इजलास तलब किया है। इजलास से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाई के बाद इन जगहों पर दोबारा तजावुज़ात कायम ना हो। जो अनासर तजावुज़ात कायम करें उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शेर शाह में नाले में गैस भर जाने से होने वाले धमाके को 11 रोज़ गुजर गए, मगर इमारत को मुकम्मल तौर पर मिसमार नहीं किया जा सका। मुतासरा इमारत के पिछले हिस्से को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। पराचा चौक पर होने वाले खौफनाक धमाके को 11 रोज़ गुजर गए। मुतल्लिका इदारों की जानिब से इमारत को मुकम्मल तौर पर मिसमार नहीं किया जा सका है। साल 2021 तालीम के लिए कैसा रहा? इस साल तलबा को क्या क्या सरप्राइज़ मिले? तालीम के हुसूल में क्या मुश्किलात रहीं? तफसीलात इस रिपोर्ट में। साल 2021 तालीम के लिए कैसा साल रहा? इस साल तलबा व तालबात को क्या क्या सरप्राइज मिले और तालीम के हसूल में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। साल 2021 में मुल्क भर के स्कूलों और कॉलेजों के लाखों तलबा ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सतह पर लाजमी इम्तिहानात नहीं दिए, बल्कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात का इनकाद ही मुमकिन हो सका। मुल्क की तारीख में पहली बार मैट्रिक की सतह पर नताइज 99% मार्क्स के साथ जारी हुए, जबकि इंटरमीडिएट की सतह पर प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉमर्स के मज़ामीन में भी तलबा ने पहली बार 97% मार्क्स हासिल किए, जो कि
हैरान कुन थे। स्कूलों की सतह पर 1.5 साल के जायद अरसे के बाद सिंध समेत पूरे मुल्क में तलबा की 100% हाजिरी के साथ स्कूल खोल दिए गए, जबकि रवां बरस जब साल का आगाज हुआ तो कोविड के पेश नजर स्कूल बंद थे। फरवरी 2021 में स्कूल खुले, तहम सेशन खत्म होने के साथ स्कूलों के खुलने और बंद होने का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। तलबा ने गुज़िश्ता तालीमी सेशन के साल का 50% से जायद अरसा ऑनलाइन क्लासेस के साथ गुजारा, जिससे तलबा की तालीमी काबिलियत और सलाहियत मुतासिर हुई। कोविड ने इस साल भी तालीमी सिलसिले को बुरी तरह मुतासिर किया, ताहम गुज़िश्ता साल के बरक्स इस साल तालीमी इदारे कभी बंद तो कभी खुलते दिखाई दिए। गुज़िश्ता साल के बरक्स साल 2021 तालीम के सिलसिले में कदरे बेहतर रहा। 50% तक तालीमी सिलसिला बहाल रहा। उम्मीद है कि साल 2022 तालीम के लिए नई नवीद लेकर आएगा और इस साल से भी कहीं ज्यादा तालीमी सिलसिला बेहतर रहेगा। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची में मौसम की तब्दीली के साथ ही बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। नज़ला, खांसी, बुखार, नमूनिया जैसे अमराज फैलने लगे हैं, जबकि मौसम सरमा में बच्चों को ठंडे से बचाने के लिए गर्म कपड़ों और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। इस सदी के आखिर में कुरैर्स का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री बढ़ने का खदशा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने खतरे को आगाह कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से कुदरती आफात के पेश की खतरात से निपटने के लिए आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कराची में मौसमियात के दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए डीजी महकमा मौसमियात डॉक्टर मोहम्मद रियाज का कहना था कि हमें ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि कराची में समंदरी तूफान कभी नहीं आएगा। समंदरी तूफान न आने की कोई साइंसी वजह मौजूद नहीं। हमारे लिए बड़ी इम्प्रूवमेंट की मिड डिपार्टमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट की जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितना हमें मज़ीद काम करनी चाहिए, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए विद दिस। तकरीब में कराची में बगैर मनसूबाबंदी के बनाई गई बुलंद दोबारा इमारतों को ज़लज़ले के लिए ख़तरनाक करार दिया गया। सरदार सरफराज ने कहा कि SBCA ने हमसे रब्ता नहीं किया कि कहाँ बड़ी इमारतें बननी चाहिए, कहाँ नहीं। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी SBCA ने या इन लोगों ने हमसे रब्ता किया हो, डेटा पूछा हो कि किस एरिया की सेस्मिसिटी कितनी है, यहाँ पे हाई राइज कोई बिल्डिंग बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। तो एक्चुअली तो पूरे मुल्क में कंस्ट्रक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि जो आपके बिल्डिंग कोड्स हैं, जैसे कि जापान में होता है, तो स्ट्रिक्टली उनके यहाँ जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग कोड्स हो रही होती है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियों वाले ममालिक में शामिल हो रहा है, लिहाजा फौरी इक़दाम ना किए गए तो कुदरती आफात के दौरान बड़े माली व जानी नुकसान का खतरा है। कॉमनवेल्थ गेम्स की ब्रिटेन का कराची में सफ़र अख्ताम पजीर हो गया। लियारी के किकरी ग्राउंड में तकरीब हुई, जिसमें मशल को बिगी और डोंकी कार्ट में घुमाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मशल का शहर कायद में यादगार सफ़र तमाम। कराची में मुनक्किदा तकरीब के दौरान क्वींस बैटन को बग्घी पर सैर कराई गई। रिवायती लेवा रक्स ने भी समा बांध दिया। अरशद नदीम और हैदर अली ने बैटन के यहाँ आने को तारीखी लम्हा करार दिया। नौजवान एथलीट्स ने मुख्तलिफ खेलों में जौहर भी दिखाए। बच्चों का जोश भी दीदनी रहा। बहुत प्राउड की बात है कि मशल लेके मैं पूरे ग्राउंड में घूमी। आखिरी ग्राउंड में पहली बार हो रहा है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं कभी रिले में नहीं आई। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ये सब नया देखकर बहुत अच्छा लगा। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर धुनों से खूब महसूस हुए। बैंड वालों को इनाम भी दिया गया। The boys and girls, the men and the women participating today, and of course the band. I love the band. The music's fantastic. So it's a really good, a nice finish to our Queen's Baton Relay here in Pakistan. लियारी के ककरी ग्राउंड में मुनक्किदा तकरीब के इख्तिताम पर बैटन के हमरा फोटो शूट भी हुआ। कैमरामैन आकिब अली के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।